وہ سب کچھ میرے ذہن میں ہے۔ اس کے آفس کے بندے سے میری اچھی دوستی ہے، شاید وہ میرے کام آ جائے، کچھ ایسے ڈاکومنٹس اس کے ہاتھ لگ جائے جو میرے کام آ سکے۔ کسی بھی طرح کچھ بھی کروں گا، لیکن اپنے بابا کا پیسہ تو میں اس سے لے کر ہی رہوں گا۔ ہر صورت میں زین اٹل لہجے میں بولا، چلو یار تم دونوں کتنی دیر ہے؟ بلال جی بھر کے بیزار ہوا۔ جی بھائی بس آ رہے ہیں، تانیہ نے جواب دیا اور جلدی سے اسکارف اوڑھنے لگی۔ ارے واہ بھائی، کہاں کی تیاریاں ہو رہی ہے؟ فضا نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس تمہاری ہی کمی تھی، کبھی اپنے گھر پر ہی ٹک کر بیٹھ جایا کرو۔ بلال جل کر بولا۔ اچھا ہوا فضا تم آ گئی، ہمارے ساتھ چلو، بھائی ہمیں شاپنگ کروانے لے کر جا رہے ہیں۔ تانیہ نے جلدی سے فضا کو بولا، کہیں وہ بھائی کی بات کا برا ہی نہ مان جائے۔ نہیں رہنے دو، تمہارے بھائی کو تو میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے، مزید باہر بھی اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ فضا ناراضگی سے بولی، کیسی بات کر رہی ہو فضا؟ بھائی نے ویسے ہی بول دیا، ان کا تو مذاق چلتا ہے تم سے۔ اب کے ثانیہ نے بھی بولا، نہیں تم لوگ جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی ماموں اکیلے ہوں گے، میں ان کے پاس ہوں جب تک۔ ابھی احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی ابو سو رہے ہیں، وہ 2 یا 3 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھیں گے، تو اس لیے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 منٹ کے اندر تم تینوں باہر آ جاؤ۔ اب کے بلال بولا اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ پورا کا ہٹلر ہے تمہارا بھائی، فضا نے باہر نکلتے ہوئے بلال کو گورتے ہوئے بولا۔ سوچ لو اس ہٹلر کو ساری زندگی تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا، تانیہ نے قریب آ کر فضا سے کہا۔ فضا نے تانیہ کو گوری سے نوازا اور وہ تینوں باہر کی طرف چل دیے۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے، تب اسما کو ظفر مراد نے اپنے روم میں ضروری بات کے لیے بلوایا۔ وہاں پہ فاطمہ کے علاوہ ان کے چھوٹے دیور اور باؤ بھی موجود تھے۔ آؤ اسما، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، بیٹھو، ظفر صاحب نے کہا، جبکہ فاطمہ کا منہ بنا ہوا تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ اسما سب کو دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھی۔ ہاں سب خیریت ہے، تم بتاؤ حور کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں اسے؟ ظفر صاحب نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی صاحب، اللہ کا شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپنے گھر میں کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا؟ حور کے پیپرز چل رہے ہیں، اسی میں بیزی ہے وہ، اسما نے جواب دیا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی ہو گئی، جسے ظفر صاحب کی آواز نے ختم کیا۔ دراصل ہم نے تمہیں حور کے سلسلے میں ہی بلایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حور کے ایگزامز کے بعد گھر میں چھوٹی سی تقریب رکھی جائے، حور اور حضر کی منگنی کر دی جائے۔ ان کی بات پر فاطمہ کے علاوہ باقی تینوں کو ایک جھٹکا لگا۔ بھائی صاحب، حضر اور حور میرا مطلب ہے۔ آسما نے پہلے بے یقینی سے فاطمہ کو دیکھا، جو بڑی چپتی ہوئی نگاہوں سے اس کو گور رہی تھی۔ سارا کو بھی ظفر صاحب کی بات سن کر اچھی طرح پتنگے لگ چکے تھے، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ کیوں آسما، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ظفر صاحب نے اسما سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ دور نہیں رہا، آپ بچوں سے پوچھ لیں، ان کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ اسما ٹھہر ٹھہر کر بولی، اس رشتے میں حضر کی خوشی اور رضامندی شامل ہے، میرے خیال میں اب کسی کے بھی اعتراض کی گنجائش نہیں نکلتی۔ انہوں نے اسما کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ بلو والا ڈریس اچھا لگ رہا ہے یا پرپل والا؟ ثانیہ اور تانیہ بھی ڈریسنگ دیکھ رہی تھی، جب فضا نے بلال کے پاس آ کر پوچھا۔ دونوں ہی فارغ لگ رہے ہیں، بلال نے ایک نظر ڈریس پر ڈال کر جواب دیا۔ تمہیں تو میری چائس کبھی زندگی میں پسند نہیں آئے گی، فضا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پسند بھی تو دیکھو، سبحان اللہ ہے، بلال نے ایک بلیک کلر کا ڈریس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلال نے چونک کر اس کو دیکھا اور وہ بلیک ڈریس بلال کے ہاتھ سے لے کر اپنے لیے پیک کروانے لگی۔ بلال کچھ دیر تک وہی کھڑا رہا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا۔ ابھی وہ لوگ شاپنگ کر کے فارغ ہوئے تھے جب بلال کی نظر وہاں اشار پر پڑی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بلال نے پوچھا۔ جو سب کر رہے ہیں وہی کرنے آیا ہوں، ظاہر سی بات ہے شاپنگ کرنے آیا ہوں۔ اس نے بلال کے پیچھے فیملی دیکھی تو بولا، چلو بعد میں ملاقات ہوتی، میں چلتا ہوں۔ ارے کہاں چلے، چپ کر کے بیٹھو، ان لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے شاپنگ کر کے، فوڈ کورٹ میں ہمیں جوائن کرو۔ بلال کے کہنے پر اسے بھی جانا پڑا ہے۔ تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ میرا بہت خاص دوست ہے اشار، اور اشار یہ دونوں میری بہنیں ثانیہ اور تانیہ، اور یہ میری کزن فضا ہے۔ اشار کی نظریں تانیہ پر پڑی تو وہ اشار کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اشار کے دیکھنے پر ثانیہ نے اپنی نظروں کا رخ دوسری طرف موڑ لیا، شاید وہ بھی اس کو پہچان گئی تھی۔ اسکارف لیے ہوئے میک اپ سے عاری چہرہ اشار کو دوسری لڑکیوں سے مختلف اور دلکش لگا۔ حور کے پیپر کی وجہ سے اسما نے اس کو خود سے حضر کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ حضر ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا، اسما کی عزت کرتا تھا، خیال رکھنے والا بچہ تھا،
मगर अस्मा को फातिमा बेगम का रवैया कुछ तशवीश में मुब्तला कर रहा था, मगर फ़िलहाल उन्होंने जहन से इसको भी झटक दिया। आज वो आखिरी पेपर देकर आई थी। पेपर के दौरान वो अपने कमरे तक ही महदूद हो गई थी। कोई भी काम के लिए उसको नहीं बुलाता था। शायद पेपर का ख्याल करके ना बुलाते हो, मगर उससे पहले तो इतनी परवाह किसी ने नहीं की। चलो अच्छा ही है। हूर मगन अंदाज में अपने आप से बातें करते किचन में आई, अपने लिए चाय का पानी रखा तो फातिमा ताई उसके सामने आई और चुपते हुए लहजे में गोया हुई, जो तुमने और तुम्हारी माँ ने खेल खेलना शुरू किया है ना, याद रखो मैं इसमें तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। हूर ने ना समझी से ताई की तरफ देखा और बोली, मैं समझी नहीं ताई, आप क्या कह रही है? बहुत बोली और मासूम हो ना तुम। इस तरह अदाए देखा कर मेरे बेटे को अपना दीवाना बना सकती हो, पर मैं भी बेवकूफ़ नहीं। और याद रखना, तुम मेरे जीते जी कभी हिजर की ज़िंदगी में नहीं आ सकती। वो ये कहकर रुकी नहीं, चली गई, लेकिन उसको वही सख्ते की कैफियत में छोड़ गई। ये क्या कह रही है ताई? मैं और हिजर भाई? मुंह पर हाथ रखे वो बिना आवाज़ रो रही थी। अचानक हिजर किचन में दाखिल हुआ। हूर ऐसे क्यों खड़ी हो? तुम रो रही हो? उसने हूर का रुख अपनी तरफ मोड़ा। मुझे बताओ क्या हुआ है? हूर बस हाली हाली निगाहों से उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे किचन से अपने रूम में आ गई। उसे बहुत रोना आ रहा था ताई की बातों पर। कमरे में आसमा आई। हूर क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? आसमा ने परेशानी से पूछा। ताई ने बहुत गलत बातें की हैं मामा। हूर ने सारी बात आसमा को बताई। तुम्हारे ताया ने हिजर के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। हूर ने बेयकीनी से आसमा को देखा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारे पेपर हो रहे हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मी मैंने तो हिजर भाई को हमेशा अपना भाई ही समझा है, और हिजर भाई भी। बेटा इस रिश्ते में हिजर की मर्जी शामिल है, और फिर वैसे भी वो बहुत अच्छा परमाबरदार लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, वो खुद को समझाने वाले अंदाज में कहने लगी। वो बस खामोशी से माँ को देखती रही। ज़ैन ने ज़फ़र मुराद पर काबिल एतबार बंदे से नज़र रखवाई। अब इसके तमाम मामलात आने जाने का रूटीन, ज़ैन को हर चीज़ की खबर मिलती रहती, लेकिन किसी पुराने डॉक्यूमेंट्स या फाइल में ज़ैन को ऐसे खातिर खास सबूत नहीं मिले जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो या उसके काम आ सके। उस दौरान ये अच्छी बात हुई कि सारा की बेटी माहम को भी कुछ लोग पसंद कर गए। मंगनी की तारीख एक हफ्ते के बाद रख दी गई। जब हिजर और हूर की मंगनी की तारीख मुकर्रर हुई, हूर का और हिजर का उस दिन के बाद आमना सामना नहीं हुआ। हूर ज़्यादातर अपने कमरे में रहती। वजह ये नहीं थी कि वो खुश नहीं थी, मगर वो शाक ज़रूर थी। उसने कभी भी हिजर के मुतालिक इस तरह नहीं सोचा था। ये सब उसके लिए थोड़ा अजीब और नया था। ज़हन इतनी जल्दी से इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, और दूसरी बात, दिमाग में कहीं उस अजनबी का खौफ भी था जिसने उसे हिजर से दूर रहने के लिए कहा था। गैर इरादी तौर पर वो उस अजनबी के बारे में सोचने लगी। तानिया और फिजा छत पर बातें कर रही थी। सानिया की आवाज़ देने पर तानिया छत से नीचे उतरी। जब बिलाल छत पर आया तो फिजा को सोच में डूबे हुए देखा। क्या सोचा जा रहा है? बिलाल ने करीब आते हुए पूछा। तुम्हें? फिजा ने बिलाल की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हर वक्त फजूल नहीं हाँका करो, बिलाल ने डपटने के अंदाज में कहा। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो तुमने पूछा उसका सच्ची सच्ची जवाब दिया है, फिजा ने उसको देखते हुए जवाब दिया। और मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है? बिलाल उस पर नजरें हटाकर मैदान में देखते हुए बोला, जहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। यही कि नौकरी तुम्हारी लगी नहीं, मगर कोई लॉटरी ज़रूर निकल आई है। उसने चंद दिनों में होने वाली तब्दीलियां महसूस की तो शरारत से बोला, हाँ लॉटरी निकल ही ना जाए मेरी, मैं तो अब गन पॉइंट पर लोगों को लूटता हूँ। बिलाल ने हाथ की उंगलियों से नकली गन बनाकर फिजा के सर का निशाना लिया और फिर उंगलियों में अपने होंठों पर ले जाकर पोंख मारी। पहले फिजा चुप करके देखती रही, फिर एक जोर से हंसी। तुमसे तो चिड़िया का बच्चा नहीं मारा जाएगा, और चले हो लोगों को लूटने, और वो भी गन पॉइंट पर, फिजा ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तो तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात का? बिलाल ने फिजा को देखते हुए पूछा। 1% भी नहीं, फिजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे वो उसके मजाक को एंजॉय कर रही हो। इतने में बिलाल ने अपनी पॉकेट से मिनी पिस्टल निकाली और फिजा के माथे पर रख कर कहा, अब क्या ख्याल है? सर्दियों का आगाज हो चुका था और आज छुट्टी का भी दिन था। सब लोग लान में बैठे हुए चाय पी रहे थे। माहम चाय का कप थामते हुए बेजार अंदाज में बोली, पढ़ पढ़ कर मैं पक चुकी हूँ, प्लीज़ कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बनाए। चलो तो फिर आज रात का डिनर बाहर, सबको मेरी तरफ से। हिजर ने हूर को देखते हुए कहा, जो कि अभी सबके दरमियान आकर बैठी थी। जब से इन दोनों के रिश्ते की बात घर में चली थी, हूर कम ही हिजर के सामने आती थी। एक बेनाम सी झिझक उन दोनों के रिश्ते में आ गई थी। क्या हिजर भाई, मैं डिनर की बात थोड़ी कर रही हूँ,
वो तो आप अपनी मंगनी की खुशी में वैसे ही करा देंगे। कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बनाए प्लीज़। हाँ यार, वैसे पिकनिक तो होनी चाहिए, आइडिया बुरा नहीं है। रेदा ने भी माहम की हाँ में हाँ मिलाई। घर में थोड़े ही दिनों बाद तकरीब है और तुम लोगों को पिकनिक की लगी हुई है। कोई कहीं नहीं जा रहा, चुप करके बैठो घर में, सारे ने डपटने वाले अंदाज में कहा। नहीं माँ, हम सही कह रही है, काफ़ी अरसा हो गया है कहीं गए हुए। ऐसा करते हैं, परसों अपने फार्म हाउस पर चलते हैं, थोड़ा हम बूढ़े लोग भी फ्रेश हो जाएंगे। जफर मुराद बोले। थैंक यू ताया, माहम चहक कर बोली। सभी होश थे सिवाय फातिमा के। फिजा पटी पटी आंखों से बिलाल को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि बिलाल के हाथों में पिस्टल है और उस पर ताने खड़ा है। बिलाल, ये तुम। आगे वो बोल नहीं पाई। कदमों की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि कोई छत पर आ रहा है। बिलाल ने फुर्ती से पिस्टल वापस पॉकेट में रख ली। ये लो भाई, गर्मा गर्म चाय पकौड़ों के साथ हाजिर है। तानिया हाथ में चाय की ट्रे लेकर छत पर नमूदार हुई। उसके पीछे सानिया भी थी। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? चाय लाई हूँ तुम्हारे लिए, पिज़्ज़ा को जाता हुआ देखकर तानिया ने कहा। नहीं, मुझे घर जाना है। पिज़्ज़ा ये कहकर रुकी नहीं। उसे क्या हुआ? सानिया ने बोला। बिलाल ने चाय का कप उठाते हुए कंधे उचकाए। वो पिज़्ज़ा के लिए अपने आंखों में मोहब्बत और पहले ही देख चुका था। पसंद वो खुद भी करता था, मगर अपने मसले मसाइल और जिम्मेदारियाँ, उन सब का सोचकर उसने कभी भी पिज़्ज़ा के जज्बों की हौसला अफजाई नहीं की। और अब जो राह वो इख्तियार कर गया था, उसे खुद नहीं पता था कल को उसका मुस्तकबिल क्या है। पहले पिज़्ज़ा की मोहब्बत सिर्फ आंखों से आया होती थी, मगर अब वो लफ्ज़ों का सहारा लेने लगी थी। बिलाल का मकसद पिज़्ज़ा को इस तरह करके डराना या नाराज़ नहीं करना था। वो सिर्फ उसे आगाह करना चाहता था कि वो जिन रास्तों पर चल निकला है, उसके लिए ये रास्ते खतरनाक है। तो जफर मुराद के खिलाफ तुम्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला? काफ़ी शातिर इंसान निकला है तुम्हारा ये होने वाला ताया ससुर। बिलाल ने आखिरी बात शोख अंदाज में कही, जिस पर उसे जहन ने घूर कर देखा। ये क्या सीन है बास, ये स्टोरी कब स्टार्ट हुई? अशहर ने नासमझी से उन दोनों को देखा और हैरत में मुब्तला होकर पूछा। उसके बाद बिलाल ने पूरी रुदाद अशहर को सुनाई। बस हो गया तुम्हारा? जैन सिगरेट मुंह में रखते हुए बोला। ए मेरे हीरो, तुम चुपे रुस्तम निकले हो यार। अभी जैन कुछ बोलता उससे पहले जैन का मोबाइल बजा। हाँ फैसल बोलो, चलो ठीक है। जैन दोबारा सिगरेट पीने में मसरूफ़ हो गया। हैरत, क्या खबर है? बिलाल ने पूछा। जफर मुराद अपनी फैमिली के साथ फार्म हाउस जा रहा है। जैन कुछ सोचते हुए बोला। तो फिर आगे क्या सोचा है तुमने? अशगर ने संजीदगी से पूछा। सोच रहा हूँ कैसे ये पिकनिक जफर मुराद के लिए यादगार बनाऊँ। जैन सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला। अपना सामान लड़की, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 महीनों के लिए नहीं। हिजर ने माहम को 3 बक्स लाते हुए देखकर कहा। ये बस देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे 2 महीने के लिए जा रहे हैं। माहम बोली। तुम्हारा सामान देखते हुए अरेंज कराई है। ये आपने बहुत अच्छा किया। अभी 2 बैग्स और लेकर आती हूँ, जब तक आप इन्हें रखवाए। माहम उसको बैग्स थमाते हुए अंदर चली गई। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, हिजर ने माहम को जाते हुए देखकर बोला। यह फार्म हाउस जफर मुराद का अपना ज़ाती था, आबादी से काफ़ी दूर था। बड़ी सी बस जब फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई तो मेन डोर बंद कर दिया गया। सब लोग अपने अपने बैग्स लेकर अंदर जा रहे थे और बहुत होश थे सिवाय फातिमा के। उन्हें ये टेंशन थी कि अब घर जाने के बाद मंगनी का शोर मच जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकती थी। शाम का वक्त था। सब लोग लान में कुर्सियों पर बराजमा हुए चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सबकी मौजूदगी में हिजर को हूर कहीं नजर आई। उसको ढूंढता हुआ पुल की साइड पर आ गया। वो वहीं मौजूद किसी गहरी सोच में गुम थी। क्या हुआ हूर, क्या सोच रही हो? हिजर की आवाज़ पर हूर ने चौंक कर उसे देखा। आप? हूर ने इधर उधर देखा। अगर ताई ने देख लिया तो सबके सामने उसकी इज्जत अफजाई हो न जाए, यह सोचकर वो वहाँ से जाने लगी। रुको हूर, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हिजर ने उसको जाते हुए देखकर बोला। हूर, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? तुम्हारा ये ग्रेस की कहीं तुम किसी और को तो पसंद? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं किसी और में इन्वॉल्व? आप मुझे ऐसी लड़की समझते हैं? हूर ने हबगी से हिजर को देखते हुए कहा। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल तुम्हारा इस तरह मुझसे ग्रेस। हिजर ने बात अधूरी छोड़ी। हिजर भाई, मैंने आपको हमेशा भाई समझा है, कभी दूसरी नज़र से नहीं देखा। ये सब इतना अचानक। अभी तो मुझे बहुत सारा पढ़ना था। और फिर ताई वो खुश नहीं है, आपको उनकी खुशी मद्देनज़र रखनी चाहिए। देखो हूर, मुझे अंदाज़ा है कि अम्मी इस रिश्ते से खुश नहीं। उनका रवैया भी तुम्हारे और असमा चची के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन वो अपने बेटे से भी बहुत प्यार करती है। और जब उन्हें मालूम होगा उनके बेटे की खुशी इसी में है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते को कबूल कर लेंगी। रही बात तुम्हारे पढ़ने की, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सिर्फ मंगनी हो रही है, शादी तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद रखेंगे।
اور آخری بات، تم نے ہمیشہ مجھے بھائی سمجھا ہے، دوسری نظر سے نہیں دیکھا، تو اب دیکھ لو۔ اس سے پہلے ہزر کچھ اور کہتا، عجیب شور کی آواز لان سے آئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا، پھر دونوں ہی لان کی طرف جانے لگے۔ لان میں ساری ہی فیملی بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی، ہلکا ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا۔ جبھی دیواروں پر سے کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ 3 نقاب پوش ہاتھوں میں پسٹل لیے ہوئے ان لوگوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماہم اور سارا کی پسٹل دیکھ کر خوف سے چیخیں نکل گئی۔ آواز نہیں نکلنی چاہیے اب کسی کی، اگر اب کسی کی آواز آئی تو یہی مار ڈالوں گا، ایک نقاب پوش بولا۔